everyone, welcome to Engineer Career Point, and this video is for all the ones who are preparing for PSTCL, Punjab State Transmission Corporation Limited, and also for other Punjab examinations also. The reason is very simple. Whenever you're preparing for any examination, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ एग्जाम ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, questions किसी भी टॉपिक च किवें दे प्रेजेंट है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੈਂਸਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ ਐਂਡ ਥੋਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ so obviously you need to go through the PYQs very primarily and secondly PYQs के basis पे whatever the kind of questions kind of rules which are there we need to emphasize those. So let's get started with the very first question. So the first question is, select the most appropriate antonym of the given word. And the given word is relish. So we all know relish का मतलब क्या है? That is something you enjoy, something that is savory, something that is taste. Now you get an idea that based on food there can be certain vocabulary like scrumptious. That is something that is very very tasty, very you can say delightful. You call it out as scrumptious food. If I call it out, a person is a big time glutton, that is a person is a big time foodie. So there are certain vocabulary segments related to food which you need to revise obviously because you get a probable idea कि ठीक है food के basis पे vocabulary का पहला क्वेश्चन था. अब इसमें ऑप्शंस क्या है? डिस्ग्रेस, हमें एंटोनिम ढूंढना है मतलब ऑपोजिट ढूंढना है. डिस्ग्रेस, हम किसी की ह्यूमिलेट बेइज्जती वो वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग. लाइक डिसलाइक वो ऑपोजिट्स आते हैं, ये भी नहीं आएगा. ओबे डिसोबे, नहीं, हम किसी के ओबे डिसोबे की बात नहीं कर रहे हैं. द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद अस इज डिसटेस्ट because this is related to food, enjoying it out, this is something that is not tasty. So option second is the answer. Let's go with the second question. This is, select the most appropriate option to fill in the blanks. आप हर क्वेश्चन में खुद फर्स्ट यू ट्राई इट आउट दैट व्हाट कुड बी द प्रोबेबल आंसर ऑफ इट एंड देन वी कैन गो इट टुगेदर. ओके, सो हियर इट इज, sugarcane has been grown in this area dash several years. Now see, whenever it is a perfect sentence, आपको ये tenses का आ गया sentence और इसमें भी एक rule होता है that is related to perfect case. परफेक्ट केस में आपका सिंस या फॉर जरूर पूछा जाता है. दैट इज सिंस आ जाता है जैसे मंडे, कोई भी सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजी दिखती है आपको जहाँ पे मैथ्स नंबर नहीं होता है, जस्ट अप्लाई सिंस ओवर दैट. और जहाँ पे मैथ्स नंबर है जैसे 12 डेज 2 आवर्स, इसके साथ फॉर लग जाएगा. मतलब रूल को इम्प्लाई करो, हैज हैव हैड में से ये किसी में भी अप्लाई हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे कोई मैथ्स नंबर नहीं है ना, सेवरल ईयर्स नो मैथ्स नंबर, तो सीधा क्या अप्लाई हो जाएगा? सिंस हो जाएगा. मैथ्स नंबर लेकिन डेफिनेट हो, जैसे 1947 है, 1967 है, 21st सेंचुरी है, 8 AM है, 8 PM है. जब फिक्स टाइम के साथ मैथ्स नंबर आता है तो सेंस लगता है, सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजी के साथ सेंस लगता है, फॉर लगता है जहां पे आप बोल सकते हैं मैथ्स नंबर भी है लेकिन वो फिक्स नहीं है, दैट इज फॉर. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो डन. गो फॉर द थर्ड वन नाउ. थर्ड में आपको क्या पूछा जा रहा है? दैट इज, अच्छा, select the sentence structure that is grammatically correct. Okay, till the end of the book couldn't she read? She could not read till the end of the book. The end of the book till she could not read. The book she could not till the end of the read. That doesn't even make sense. तो पढ़ते हुए भी हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और prepositional phrase ये सारा हमें अगर मिल रहा है, that is I think I am getting in. She could not read till the end of the book. ठीक है, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जैसे सीक्वेंस होती है वैसे ही आपको अप्लाई करना है एंड दैट इज द थर्ड वन. तो सीक्वेंसिंग पे क्वेश्चन आ गया. लेट्स गो विद द फोर्थ वन. अब यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. When he unlocked the door and opened his room, he dashed that his laptop was gone. Now what you have to understand is discovers is discovering, discover और discovered. मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से 3 मुझे प्रेजेंट का इंडिकेशन दे रहे हैं क्योंकि डिस्कवर्स सिंपल प्रेजेंट, इज डिस्कवरिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, डिस्कवर सिंपल प्रेजेंट. सेंटेंस मेरा चल रहा है पास्ट में, अनलॉक द डोर ओपनड हिज रूम, तो मैं ऑब्वियसली पास्ट को सिलेक्ट करूंगी. चलिए थर्ड ऑप्शन आ गया हमारा, दैट इज सिंपल पास्ट आ जाएगा, डिस्कवर्ड. रूल्स होते हैं जब आप टेंसेस को भी फोकस करते हो. इफ आई हैव टू मेक यू रिवाइज इन द सेकेंड्स, इट वुड बी सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट जब आपके 2 इंसिडेंट्स आ जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट,
सिंपल फ्यूचर, जब आपका एक इंडिकेशन आ जाता है अबाउट द रियलिस्टिक सिचुएशंस। आपके कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं जो टेंसेस में आते हैं, वो जरूर आप सेगमेंट रिवाइज कर लो, आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। लेट्स गो विद द फिफ्थ वन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। दैट मीन्स आपको ईडीएम आइडेंटिफाई करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्चुअली वोकैबुलरी के बेसिस पे सी दोबारा क्वेश्चन है। अ ब्रॉड पीस ऑफ मेटल यूज्ड एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लोज और मिसाइल्स। तो आपका ब्रॉड पीस क्या आ सकता है? कुड इट बी शील्ड, स्वॉर्ड, शेड, शेल्टर। अब हमें पता है कि शेल्टर है, प्रोटेक्शन देता है हमें बैड वेदर के साथ। शेड कोई हमें पोजीशन, हमें एक शेल्टर मिल रहा है सनलाइट से, आप बोल सकते हैं। स्वॉर्ड जो वेपन यूज किया जाता है स्ट्राइकिंग करने के लिए, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है। शील्ड होता है जो एक ब्रॉड मेटल है जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं व्हेन समवन इज, यू कैन से, फेंसिंग और समथिंग अगेंस्ट अस, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इट वुड बी शील्ड, फिफ्थ का फर्स्ट ऑप्शन। Okay, so now let's discuss question number 6, and it is selects the most appropriate option for the following. A group of bees. It could be honeycomb, beehive, it could be swarm, or it could be colony. See, honeycomb जैसी नेम से है, that is the place where you will store, जैसे स्ट्रक्चर बना होता है वैक्स सेल्स का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बीज अपना हनी स्टोर करते हैं, that is termed as your honeycomb आ गया। beehive भी हमें पता है क्या होता है, that is a physical structure जहाँ पे colony of bees live करते हैं। swarm आ जाता है जब बहुत ज़्यादा झुंड होता है ना बीज का, वो मूव करते हैं। कॉलोनी हमें पता है जहाँ पे इंटायर पॉपुलेशन है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं जहाँ पे रहते हैं। सो बेसिकली स्वॉर्म इज अ वर्ड जहाँ पे एक बीज का विंग है दैट इज मूविंग, दैट इज टर्म्ड एज योर स्वॉर्म। आई होप दिस क्वेश्चन इज यू गॉट राइट ऑफ इट। नेक्स्ट इज सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम क्या है हमारे वर्ड का? कंपोज बना दीजिए। कंपोज का मतलब क्या होता है? सिनोनिम मतलब सेम करना है हमें, फाइंड राइट। सो कंपोज का मतलब क्या होगा? कोई चीज बिल्डअप हो रही है, एक्साइट रेलिवेंट नहीं है, डिस्टर्ब रेलिवेंट नहीं है, अपसेट रेलिवेंट नहीं है, ओनली वन इज रेलिवेंट, दैट इज क्रिएट। कंपोज का मतलब भी बनाना, क्रिएट का मतलब भी बनाना, दैट इज टर्म्ड एज सेवेंथ। अच्छा 8 देखते हैं, दैट इज योर ओके। अब ये आ जाता है आपका स्पेलिंग्स पे बेस्ड। टेक अ लुक, इनॉग्रेशन, व्हाट कुड बी द आंसर? inauguration, augu, A-U-G-U होना चाहिए, which is a mistake normally people do, A-U-G-U, ration, R-A-T-I-O-N, inauguration. So that is a fourth. The moment you pronounce the word correct, you will get the words also correct. So pronunciations पे जरूर focus करो। 9th आ जाता है आपका the sentence structure, again sequence पे आ गया हमारे पास एक और sentence। अब इसको पढ़ो, और पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि what could be the probable mistake of it, right? अब पहला आ गया आपके पास, इन द पार्क प्लेड चिल्ड्रन, प्लेड क्रिकेट द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट इन द पार्क, द चिल्ड्रन द प्लेड क्रिकेट पार्क, क्रिकेट प्लेड द चिल्ड्रन इन द पार्क। सेकेंड राइट आंसर, ये हमें सीक्वेंस से ही पता चल रहा है, राइट। लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन, 10th में आ जाता है आपका आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर आ रहा है आपका, ठीक है। It was necessary take the woman to the hospital immediately. अब यहाँ पे पढ़ो, कुछ ना कुछ आपको लगेगा कि या something is missing in this sentence, right? And that is what you have to connect with. Okay, so that is no error, to the hospital, it was necessary, take the woman, right? So इसमें आपका क्या आंसर लगता है आपको? अब मैं इसको फिर से पढ़ूं अगर सेंटेंस को बहुत अच्छे से, it was necessary to take the woman to the hospital. Doesn't it make sense? Exactly. So हमारा it was necessary, take the woman की जगह क्या आएगा? To take the woman, right? To the hospital. तो 10th का हमारा 4th हमें गलत लग रहा है। Read the 11th one now again. अब wrongly spelled है आपके पास, 4 ऑप्शंस हैं, concentrate, concern, condemn, condense, right? आपको ये चारों क्वेश्चंस को एक बार देखना है। कंसंट्रेट, कंसर्न, कंडेम एंड कंडेंस, राइट। अगर मैं पढ़ती हूँ कंसंट्रेट, ध्यान देना, कंसर्न किसी की तरफ सोचना, देन इट इज, अब मुझे तभी एक ऑप्शन मिल गया, दैट इज कंडेम। कंडेम किसी की इंसल्ट, किसी का बिहेवियर, CONDEMN होता है, एंड देयर इट इज डबल M, राइट। तो यहीं पे वी गॉट अ मिस्टेक एंड दैट इज कंडेम इज अ रॉन्ग वन इन द मीनिंग, ओके, एंड सॉरी स्पेलिंग्स। Next it is antonym of the given word.
यू हैव द ऑप्शन दैट इज जनरली. जनरली मतलब है जो चीज आप लगभग रोज करते हो, दैट इज नॉर्मली यू डू इट आउट. तो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा आपके पास? जनरली जहां पे आप कोई चीज को कभी कभार करते हो, स्पेशली करते हो किसी चीज को. जनरली, फ्रिक्वेंटली, यूजली, लार्जली, नॉर्मली हम ये चीज करते हैं. ऑपोजिट क्या आ गया फिर इसका? स्पेशली, कि हम ये चीज को कभी कभार करते हैं. सो 12th का आ गया बी ऑप्शन. 13th, that is identify the sentence which contains grammatical error. After she reached the hospital, she has a blood transfusion, right? So it would be no error, after she reached the hospital, a blood transfusion, or she has, right? अब इसके अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे she reached है, after she reached the hospital. अब दो इंसिडेंट्स आ गए मेरे पास. जब मेरे पास दो इंसिडेंट्स हैं, मैंने आपको एक तो बोला था पास्ट है और ये प्रेजेंट है, पॉसिबल ही नहीं है. हमें पास्ट में ही चलना पड़ेगा. तो दैट इज आफ्टर शी रीच द हॉस्पिटल शी हैड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा. और दो इंसिडेंट्स हैं, जो ज्यादा पुराना इंसिडेंट होगा इवन दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, ठीक है? यहाँ पे आपका आ जाएगा शी रीच द हॉस्पिटल इज राइट, शी हैज नहीं हो सकता. 10th तो हमारा पास्ट ही जाएगा. सो 13 का हमारा ऑप्शन आ जाएगा 4th इज रॉन्ग. 14th करो. Select the most appropriate option to underline the given sentence. If there is no need to correct it, select no correction. You will tell me what happened. Will you? Now this is something which is rule. जब आप एक positive assertive statement देते हो, क्वेश्चन आपका नेगेटिव में चला जाएगा. नेगेटिव स्टेटमेंट देते हो, क्वेश्चन पॉजिटिव में चला जाएगा. You will tell me what happened. Want you? Why? Because the question will go in negative. 15th. Select the most appropriate synonym of the given word. Rush. Rush मतलब बहुत जल्दबाजी में. अब मुझे packed, crush, slowed तो नहीं लग रहे हैं इसके. जो सबसे नियरेस्ट मुझे इस चीज का लग रहा है that would be your hurried. क्योंकि बाकी सारी चीजें हमें क्रश क्या बताता है? जब आप किसी चीज को डिफॉर्म कर देते हो. आपको हरी बहुत जल्दबाजी में, पैक जब हम किसी कंटेनर को फिल करते हैं, और स्लो जब हम स्पीड को रिड्यूस करते हैं, राइट? अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं. अगेन इट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अ पर्सन विद ब्यूटिफुल एंड एन एलिगेंट हैंड राइटिंग, राइट? मतलब भाई बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, उसे हम क्या बोलेंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है. कोरियोग्राफर, डांसिंग के लिए यूज करते हैं. इलिटरेट, जो ना रीड कर सकता है ना पढ़ सकता है. कैलीग्राफर, ये मुझे लग रहा है, बट उससे पहले मुझे कार्टोग्राफर पता होना चाहिए, जो ड्रॉ करता है और प्रोड्यूस करता है मैप्स को, दैट इज कॉल्ड एज कार्टोग्राफर. तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? कैलीग्राफर, जिसकी बहुत अच्छी हैंड राइटिंग होती है. 17th, इट इज वॉइस पे क्वेश्चन है. ही वॉज कंडक्टिंग द रिहर्सल ऑफ द प्ले, राइट? अब इसको कन्वर्ट करो पैसिव में. आपका ऑप्शन आ जाएगा, पहले हमें जाएंगे, ऑफ द प्ले नहीं आएगा, ये पीछे रहेगा. द रिहर्सल ऑफ द प्ले. अब आईएनजी वाला बीइंग जरूर लगेगा. बीइंग सब में लगा है. हैड कैसे आ गया? हैड आ नहीं सकता. वॉज. दीज आर द 3 राइट थिंग्स व्हिच आई एम गेटिंग. द रिहर्सल ऑफ द प्ले वॉज बीइंग कंडक्टेड बाय हिम. सो इट इज कंडक्टेड, इसका पास्ट हो जाएगा. सो इट इज ऑप्शन नंबर 2, 17 का सेकेंड. नेक्स्ट वी हैव इज 18th, दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन amongst the following, right? Synonym find करना है, same find करना है. Zeal is when you are in a state of enthusiasm, you have a great passion. We used to write the line in our junior classes. I enjoyed Diwali with great zest and zeal. I still remember that line. So many of you might have written it out. So zeal होता है जब आप बहुत ज़्यादा, और हमें क्या करना है इसमें आइडेंटिफाई? हमें इसमें सिनोनिम्स आइडेंटिफाई करने हैं, राइट? सो यहाँ पे आपका अनकंट्रोल्ड इमोशन पैशन आ जाएगा. बट लेट्स डिस्कस ज़्यादा. इंडिफरेंस, जब आप लैक ऑफ इंटरेस्ट, कंसर्न. एपैथी, दैट इज लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म आ जाता है. हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडलीनेस और हॉस्टाइल बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड एज हॉस्टिलिटी. 19th, select the option that is to be given in the passive voice. आपका क्वेश्चन है, the police arrested him on the charge of theft, but for lack of evidence released him. अब इसको भी आप passive voice में करोगे. तो पहले पार्ट को हम करके देखते हैं. What would be the answer? He was arrested on the charge of theft. अब ये सब में सेम है, राइट? पीछे वाला इन्होंने किया है, but for the lack of evidence he has been released, he was released, he had been released and he was released, right? तो यहाँ पे आप सिंपल करोगे, had been नहीं आएगा, he
was released. It would be the second one, right? He was arrested on the charge of that, but for the lack of evidence, he was released. तो इन्होंने पीछे वाले पार्ट से हमें कराया है, जिसमें आ जाता है but for lack of evidence released him, he was released. ये opposite आ गया आपका, voice में आ गया. आपको बाकी options भी एक बार check करने पड़ेंगे. Select the options to fill in the blanks. Sometimes it is difficult to deal dash the problems of child. अब जब आप डील कर रहे हो किसी की प्रॉब्लम्स के साथ, ये आ गया आपका prepositions based questions, और you always deal with someone. फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, लुक आफ्टर, लुक इनटू. लुक हो गया वर्ब, आफ्टर, इनटू हो गए प्रेपोजिशन. जैसे आप प्रेपोजिशन चेंज करते हो इंटायर मीनिंग चेंज हो जाता है. लुक इनटू इन्वेस्टिगेट करना, लुक आफ्टर देख रेख करना. उसी तरह से यहां पे डील विद समवन्स प्रॉब्लम आता है, तो आपका आंसर आ जाएगा फोर्थ. 21st इट इज ओके. आपको पार्ट आइडेंटिफाई करना है जहां पे गलती है. The interviewer asked me if I knew that Kalidasan was a greater than any other poet. Okay. अब यहां पे देखो हमें क्या लगता है, any other poet. Interviewer asked me if I knew Kalidasan was the greater. The greater तो आ ही नहीं सकता. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, if there is the then it will be superlative degree, and if it is greater then it will be comparative degree. तो दो जानों में आती है, तो दो जानों के कंपैरेटिव डिग्री में द नहीं लग सकता, आर्टिकल द इज प्रॉब्लम. सो ये दोनों हमारे डाउट में आ जाते हैं. सो कालिदास वाज अ ग्रेटर यहाँ पे हमारे रॉन्ग है, राइट. हाँ, कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट होता तो होता ज्यादा कंपैरिजन. दो जानों में आता है तो आ जाता है आपका कंपैरेटिव टू. अगर ज्यादा में आता है तो आप द भी लगाते हो और साथ में सुपरलेटिव डिग्री लगाते हो. स्टडी सेकेंड. Select the synonym of the given word and that is subjugate, right? Subjugate होता है जब आप अंडर डोमिनेशन किसी को कंट्रोल लेकर आते हो, बाय कॉन्कस्ट लेकर आते हो. लिबरेट जब आप रिलीज कर देते हो, इन रीच जब आप क्वालिटी या वेल्दियर बना देते हो, अनशैकेबल जब आप लिबरेट कर देते हो, सेट फ्री, और सप्रेस जब आप किसी को फोर्स की तरह दबाते हो. तो सब्जुगेट का मतलब सप्रेस आ जाता है. दैट इज अ फोर्थ ऑप्शन. 23rd. Select the option that will improve the underlined part of the sentence. On hearing the news over the radio that India has won the hockey match, I jumped with joy, right? अब यहाँ पे है कोई गलती लग रही है, इसको ध्यान से पढ़ो. If I read it out, India won the match and then speaker jumped with joy, right? तो यहाँ पे क्या आएगा, मतलब दो हमारे इंसिडेंट्स आ गए. ऑन हियरिंग द न्यूज, इंडिया की न्यूज क्या आई, इंडिया जीत चुकी है, और फिर मैंने जॉय के से जंप किया. दो इंसिडेंट्स इन्वॉल्व हो गए. जो ज्यादा पुराना इंसिडेंट होता है, इंडिया पहले जीती थी फिर आपने जंप किया जॉय के साथ, तो वहां पे पास्ट परफेक्ट लग जाएगा, बाद वाले के साथ सिंपल पास्ट लग जाएगा. तो इंडिया हैड वॉन द हॉकी मैच एंड देन यू जंप विद जॉय. तो इसका आंसर आ जाएगा 23rd का फोर्थ ऑप्शन. 24th. एंटोनिम फाइंड करना है बूस्ट का. बूस्ट होता है जब आप किसी को बहुत इंकरेज करते हो, एनर्जाइज करते हो, दैट इज बूस्ट, राइट. अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या है, एंटोनिम फाइंड करना है आपको. एंटोनिम क्या आ जाएगा, ऑपोजिट. अब हमें रिलेट करना पड़ेगा इसमें. अब बूस्ट सपोर्ट भी हो गया, इंकरेज भी हो गया. अब मेरे पास दो वर्ड है, डिस्करेज या रिब्यूक. देखो, रिब्यूक होता है जब आप किसी को डिसअप्रूवल देते हो, डांटते हो बहुत बुरी तरह से, दैट इज दिस. लेकिन अगर मैं इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट पे जाती हूँ, तो बूस्ट किसी को हिम्मत देना, मोटिवेट करना, डिस्करेज किसी को नीचे लाना. तो दैट इज इसका फोर्थ आ जाएगा. 25th. Select the most appropriate option to fill in the blanks, right? We must dash our students on subjects like health and sanitation besides the usual subjects. We must impart our students on subjects like health. ठीक है, impart होता है communicate करना, knowledge देना. insist नहीं करते हो आप कभी भी. we must learn भी हम नहीं सीखते हैं, students सीखते हैं. we must learn नहीं आएगा. एजुकेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एजुकेट आप नॉर्मल सब्जेक्ट्स पे करते हो, यहाँ पे आपको डिस्कशन करनी चाहिए हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, तो हम हमेशा इम्पार्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. 26. इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी आई डैश कॉशियस. अब ये कंडीशनल्स जो मैं आपको पहले भी बता रही थी, दीज आर द कंडीशनल्स, राइट. अगर आपने मुझे इन्फॉर्म किया होता तो मैं ये कर देती, तो दैट वुड बी वुड हैव बीन. These are the conditionals जो आपको 4 लॉज होते हैं टेंसेस के बाद आपको पढ़ने हैं. 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये आपका थर्ड लॉ में आ जाता है, राइट. तो दैट इज अ रिग्रेट्स वन. और आपका एक इसका रूल होता है, जब आप टेंसेस कंडीशनल्स यू विल बी रिवाइजिंग, यू विल गेट अ ब्रीफ, यू कैन से इनफ्लक्स ऑफ इट.
अब मिस स्पेल्ड अगेन स्पेलिंग पे क्वेश्चन आ गया, LEISUR, ठीक लग रहा है मुझे तो, ठीक है। अब आप चलते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं कौन सा लग रहा है, अप्रेंटिस, APPRENTICE, बिल्कुल ठीक है। सिडेंट्री, SEDENTARY, TARY होता है, बिल्कुल सही। सेटेलाइट, SATELLITE, इवन दैट इज राइट। तो मुझे लगता है इसमें कोई गलती है, हाँ आई थिंक पेपर में इसमें ETERY दिया होगा, इट्स ऑलरेडी बिन करेक्टेड, सो सिडेंट्री आपको यहाँ पे ARY, तो दीज 4 आर टोटली करेक्ट फ्रॉम माई साइड। यहाँ पे अगर गलती पेपर में ERY होगी तो वहां पे आप ARY कर देना, मतलब टाइपिंग में यहाँ पे मे बी मिस्टेक होगी, तो दे हैव रिटन ऑल करेक्ट ओवर हियर राइट नाउ। 28th, yeah. So the following sentence has been divided into parts. One of them is having an error, right? I'm not wealthy, so I cannot afford to buy a expensive car. बोलते बोलते ही लग रहा है कि भाई a expensive car कब से होने लग गया। हमने वॉल्स किए हैं, हमने आर्टिकल्स किए हैं, उसमें हम an expensive car लगाएंगे, obviously it's a wall sound, तो यहाँ पे a में प्रॉब्लम है। 29th, okay, again one word substitution, a person who collects the coins, right? अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। नार्सिसिस्ट इज समवन जो अपने आप को बहुत सेल्फ अडोर करता है, अपने आप को प्यार करता है। फैटलिस्ट इज समवन हु ऑल इवेंट्स आर प्री डिटर्मिन्ड, जैसे फेट से है और हम कुछ भी बदल नहीं सकते हैं। न्यूमिस्मैटिस्ट इज समवन आई थिंक, एंड या फिलेटलिस्ट इज हु कलेक्ट्स और स्टडीज, कईयों को पोस्टेज स्टैम्प्स कलेक्ट करने का भी बहुत शौक होता है, तो दैट इज फिलेटलिस्ट, एंड यहाँ पे आपका न्यूमिस्मैटिस्ट आ जाएगा, द वन हु कलेक्ट्स द कॉइन्स। And the last question, I think 30th, yeah, that's the last one. Select the word which is correctly spelled. अब कमीशन लिखा है, कमीशन की स्पेलिंग खुद से बोलो और फिर चेक करो। COMMISSION, which is there in second option. So that was all, and they were very easy questions, not tough questions I would say. But अगर आपने rules पढ़े होंगे तो आपको easy लगेंगे। जैसे अब tenses तो पढ़ने पड़ेंगे, vocabulary करना पड़ेगा, vocabulary में आपको idioms की तरह आ गए, स्पेलिंग्स की तरह आ गए, सिनोनिम एंटोनिम आ गए, तो ये आपको चीज़ें कुछ रिवाइज करनी पड़ेंगी। What you have to do is just go with the basics of English and go with the rules very briefly. You are going to do this paper very easily now. So all the best guys, and see you all in the classes. Take care, have a good day, bye bye.